Hello friends, how are you? I hope you are doing well. So, in continuation to our previous lecture, nitro benzene. So, we are going to discuss reduction of nitro benzene. This is a very important topic. Now, the nature of reduction product depends on the nature of reducing agent and on the pH of the reaction. So, it is well known fact that the nitrobenzenes yield different product depending on the nature of the reagent used. First of all, in acidic medium, so in a strongly acidic medium like SnHCl, ZnHCl, SnCl2, HCl, iron in presence of water or HCl, aromatic nitro compounds get reduced into aromatic primary amines. So in acidic medium, C6H5NO2 that is nitrobenzene reduced to aniline. Okay? Reduction means we know that reduction means removal of oxygen or addition of hydrogen. Okay? So in organic chemistry, reduction means removal of oxygen or addition of hydrogen or both. So in that case, removal of oxygen and addition of hydrogen. So nitrobenzene yields aniline in acidic medium. So in acidic medium, generally we use SnHCl or zinc HCl or SnCl2 plus HCl. Okay. Now second, in neutral medium. So the nature of products depends on the nature of reducing agent. Okay. If we use iron in presence of steam, then the nitrobenzene reduced to nitrosobenzene. However, if we reduce the nitrobenzene in presence of zinc, ammonium chloride or zinc dust in ammonium chloride and phenyl hydroxylamine is produced. ठीक है. So नाइट्रोबेंजीन का इन न्यूट्रल मीडियम में आयरन के साथ स्टीम के साथ कराते हैं तो यहाँ पे बनता है नाइट्रोसोबेंजीन. बट अगर हम जिंक डस्ट और अमोनियम क्लोराइड यूज करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट reagent. This one is the very important case. So जिंक अमोनियम क्लोराइड के साथ आएगा, ये बनाएगा n फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन. हाइड्रोक्सिल एमीन इज NH2OH. इसका एक हाइड्रोजन हटा दिया, यहाँ में लगाया फिनाइल, इसलिए इसको बोलते हैं n फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट केस फॉर द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन. ठीक है. सो एसिडिक मीडियम में एनलीन बनाएगा मेटल्स इन प्रेजेंस ऑफ एसिड. न्यूट्रल मीडियम में दो केस आता है जनरली. Iron in presence of steam, यहाँ में बनेगा nitrosobenzene. This is known as nitroso and double bond O. And zinc dust in presence of zinc chloride or zinc in presence of ammonium chloride, ये बनेगा n phenyl hydroxyl amine. ठीक है. Now third case is in basic medium. So here again, depending on the nature of reducing agents, nitrobenzenes can yield different product. For example, if we use zinc sodium hydroxide, then azobenzene is obtained. Here nitrobenzene yields azobenzene. If you use zinc dust with sodium hydroxide, hydrozobenzene is produced or nitrobenzene reduced to hydrozobenzene. But if we use sodium methoxide in presence of methanol, azoxybenzene is formed. Okay. So again in a basic medium, nitrobenzene yields different product. Now fourth one is electrolytic reduction. So this is again very important case. So in electrolytic reduction, nitrobenzene gives different products depending on the pH of the reaction mixture. In first case, if we use weakly acidic medium, so electrolytic reduction in weakly acidic medium, then nitrobenzene reduced to aniline. Again here we can say that रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये बन गया एनिलीन. एनिलीन हमें दो केस में बनता है. एक एसिडिक मीडियम जब SnCl ZnHCl यूज करते हैं, और दूसरा यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराते हैं लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ वीकली एसिडिक मीडियम, तो ये बनेगा एनिलीन. स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस. स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में जब नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस करते हैं तो पहले ये बनता है C6H5NH and then the rearrangement takes place and para-aminophenol is formed. So in a strongly acidic medium, nitrobenzene yields para-aminophenol. Okay, I repeat, in a strongly acidic medium, nitrobenzene reduced to para-aminophenol. However, in alkaline medium, hydrozobenzene.
ठीक है। सो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में भी 3 प्रोडक्ट बनेगा। वीकली एसिडिक है तो उस केस में एनिलीन, स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम है तो इस केस में पैरा अमीनो फिनॉल, एल्कलाइन मीडियम है तो हाइड्रोजो बेंजीन। नेक्स्ट सेलेक्टिव रिडक्शन। सो सेलेक्टिव का मतलब है इन केस ऑफ बेटा डाइनाइट्रोबेंजीन one of them gets reduced to amino group by ammonium sulfide, sodium polysulfide and sodium hydrosulfide। ठीक है, सेलेक्टिव रिडक्शन का मतलब है कि 2 ग्रुप प्रेजेंट होगा बट उसमें किसी एक को हमें रिड्यूस करना है। फॉर एग्जांपल मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, यहाँ में 2 NO2 है, इसको हमने किया यहाँ पे अमोनियम सल्फाइड के साथ और NaHS सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ। यदि इन दोनों में एक ही ग्रुप को हमें रिड्यूस करना है तो एक NO2 की जगह पे आ गया NH2, ऑक्सीजन निकल गया यहाँ से और हाइड्रोजन यहाँ पे आके जुड़ गया। ठीक है, सो 2 में से सिर्फ एक को रिड्यूस करना है तो एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया और यहाँ में एक हाइड्रोजन आ गया, दैट इज। ठीक है, चलिए सेम वही चीज यहाँ पे आपको CH3NO2 ये जहाँ रिजल्ट आएगा हमें समझ जाना है कि दिस इज फॉर सेलेक्टिव रिडक्शन। तो 2 NO2 में से एक NO2 को हमें रिड्यूस कर देना है। ठीक है, यहाँ में था 2,4 डाइनाइट्रो टोलुइन, यहाँ बन गया 3 नाइट्रो 4 मिथाइल एनिलीन। तो दिस इज फॉर सेलेक्टिव रिडक्शन। तो ये नाम देख के हमें पहचान लेना है कि हमें सेलेक्टिव रिडक्शन है। तो ये ऑलरेडी एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज टॉपिक्स so let us discuss some previous years questions, very important one, previous years questions। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रोबेंजीन gives एजॉक्सीबेंजीन and हाइड्रोजोबेंजीन when reduced। तो नाइट्रोबेंजीन कब हमको एजॉक्सीबेंजीन देता है या हाइड्रोजोबेंजीन देगा। तो देखिए एसिडिक मीडियम अभी पीछे पड़ा, क्या देता है एनिलीन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराया तो हमें, ठीक है, वहाँ में क्या देता है पैरा अमीनोफिनॉल देता है। सो इन बेसिक मीडियम नाइट्रोबेंजीन गिव्स एजॉक्सीबेंजीन एंड हाइड्रोजोबेंजीन। इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, बेसिक मीडियम में हमें ये दोनों मिलेगा। सिमिलरली नाइट्रोबेंजीन ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम, स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम यहाँ में क्या बनेगा पैरा एमिनोफिनॉल, एच आई डिस्कस्ड अर्लियर। ठीक है, यहाँ में देखिए एसिडिक मीडियम में, स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम है तो पैरा एमिनोफिनॉल, वीकली होगा तो क्या बनेगा एनिलीन। ठीक है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम गिव्स पैरा एमिनोफिनॉल। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आगे रिपीट किया हुआ है। नेक्स्ट है नाइट्रोबेंजीन गिव्स एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन, ये एम्स 2003 का क्वेश्चन है। ये एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन, ये मेटालिक रिडक्शन कराएंगे तो हमें एनिलीन देगा, यहाँ भी एनिलीन देगा। ठीक है, सो जिंक अमोनियम क्लोराइड, इस केस में हमको क्या बनता है एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। ठीक है, इसको मैंने पीछे भी इंपॉर्टेंट किया था। सो नेक्स्ट करेक्ट ऑप्शन इज डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन विद SnHCl प्रोड्यूसेस। ये एम्स 2003 का क्वेश्चन था, ये आपको पूछा एम्स 2004 में। सो यू कैन see that this is a very important topic। so reduction of nitrobenzene with SnHCl, that is in acidic medium। acidic medium में हमें क्या देगा, बोलिए acidic medium में क्या देगा एजोबेंजीन, एजॉक्सीबेंजीन, नाइट्रोसोबेंजीन, एनिलीन। तो acidic medium में नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस करते हैं तो वो हमें बनाता है एनिलीन। सो करेक्ट ऑप्शन इज विल बी डी। इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। ठीक है, सो एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन कब देगा जब जिंक अमोनियम क्लोराइड है, जिंक अमोनियम क्लोराइड लिखा हुआ है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन। ये हमें न्यूट्रल मीडियम का केस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन और ट्रीटमेंट विद जिंक अमोनियम क्लोराइड। देखिए फिर अगेन एम्स 2006। सो यू कैन सी एम्स 2003 एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन जिंक अमोनियम क्लोराइड, 2004 एसिडिक मीडियम पूछा तो एनिलीन आया। नेक्स्ट आपको यहाँ में 2006 में पूछा है सेम वही क्वेश्चन जिंक अमोनियम क्लोराइड क्या देगा। ठीक है, तो अब बताने की जरूरत नहीं क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया डी। देखिए एनिलीन इज प्रिपेयर्ड इन प्रेजेंस ऑफ आयरन HCl फ्रॉम, ये यूपी उत्तर प्रदेश कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट पहले होता था 2007 में, तो ये उसका क्वेश्चन है। तो हमें यहाँ पे कह रहा है कि एनिलीन इज प्रिपेयर्ड इन प्रेजेंस ऑफ FeHCl, किसको रिड्यूस करेंगे FeHCl, दैट इज एसिडिक मीडियम में, तो हमको एनिलीन देगा। ठीक है, बेंजीन नो, नाइट्रोबेंजीन यस। ठीक है,
सो नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस करेंगे एसिडिक मीडियम में तो हमें क्या देगा, एनिलीन। क्लियर, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, नाइट्रोबेंजीन PHNO2 जिंक अमोनियम क्लोराइड P, हमें बताना है P प्रोडक्ट विल बी एम्स 2012। देखिए अगेन फिर एम्स 2012, ऑलरेडी ये क्वेश्चन रिपीटेड है एम्स 2006 का, उसके पहले भी आपको पूछा हुआ है एम्स 2003 में। ठीक है, सो यहाँ से 3 में भी आया, 6 में भी पूछा एंड देन अगेन 2012 में भी आया। ठीक है, तो अब आप इसका ऑप्शन कर लीजिए, मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। ठीक है, बनेगा यहाँ में क्या है, नाइट्रोबेंजीन, यहाँ में है जिंक अमोनियम क्लोराइड। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी, बोलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एसिडिक मीडियम, ये तो होगा ही नहीं, NaOH, एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन। क्लियर, अब तो ये याद हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये भी एम्स 2016 में आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द गिवन कन्वर्जन। मतलब यहाँ में क्या करना है हमें, देखिए NO2 को रिड्यूस करना है NH2 में, इसमें से कौन हम यूज यहाँ पे नहीं कर सकते, विच रिएजेंट कैन नॉट बी यूज फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। तो SnHCl, यस एसिडिक मीडियम पढ़ा था, ये भी एसिडिक मीडियम पढ़ा था, ये भी NO2 को NH2 में रिड्यूस करेगा, बट यहाँ में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड नहीं करेगा, ये एजोबेंजीन बनाता है। ठीक है, ये एम्स 2016 का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन वीकली एसिडिक मीडियम। देखिए आ गया क्वेश्चन। सो वीकली एसिडिक मीडियम में क्या देगा हमें, क्या देगा, ये सीबीएसई PMT में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसको आजकल लीड बोलते हैं, बोलिए एनिलीन। तो बी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इन वीकली एसिडिक मीडियम में देगा एनिलीन। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है, द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम प्रोड्यूसेस। अगेन फिर ये 2015, ये भी PMT का क्वेश्चन था, ये फिर सीबीएसई ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2015। यहाँ में क्या पूछा है, स्ट्रांगली एसिडिक, स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में क्या देगा, पैरा एमिनो फिनॉल। ये भी ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले पूछा हुआ था अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द मेन प्रोडक्ट दैट इज 70 to 80% ऑफ द रिएक्शन बिटवीन बेटा डाई नाइट्रोबेंजीन विद अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड। पीछे मैंने बोला था कि ये रिजेंट आएगा, तो दिस इज फॉर द केस ऑफ सेलेक्टिव रिडक्शन। ये किसके लिए है, सेलेक्टिव रिडक्शन। तो मेटान डाई नाइट्रो, यहाँ पे 2 NO2 ग्रुप है, उसमें से एक को रिड्यूस करना है। लेकिन ये तो ऑप्शन गलत है, नहीं बनेगा, ये भी ऑप्शन गलत है, नहीं बनेगा, ये भी ऑप्शन गलत है, नहीं बनेगा। करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। क्लियर, सो दिस इज फॉर द सेलेक्टिव रिडक्शन, हो जाएगा। चलिए ये भी एम्स का क्वेश्चन था, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए ये भी सीबीएसई ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, जिसको हम नीट बोलते हैं, तो आप इसको कर लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी 2 बार ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो नाइट्रोबेंजीन जिंक अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन आप कमेंट में बताइएगा क्या होगा। चलिए, नाइट्रो इथेन ऑन रिडक्शन विद जिंक डस्ट एंड अमोनियम क्लोराइड गिव्स। यहाँ में मैंने पीछे पढ़ा था नाइट्रो बेंजीन का जिंक डस्ट और अमोनियम क्लोराइड के साथ, तो वहाँ में क्या बना था, एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन। ठीक है, एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन, वहाँ में C6H5NO2 था, यहाँ में आपको क्या दिया है, नाइट्रो इथेन। ठीक है, सो इसका भी आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या बनेगा। ठीक है, सो इथेनामीन, एन इथाइल हाइड्रोक्सिल एमीन, इथाइल नाइट्राइट एंड देन नाइट्रोसो इथेन। तो मैं इन सबको देता हूँ, नाइट्रोबेंजीन जब था C6H5NO2, तो वहाँ में क्या था, जिंक डस्ट अमोनियम क्लोराइड के साथ एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन था, यहाँ में क्या दिया आपको, नाइट्रो इथेन। क्लियर, हो जाएगा। इसका आप करेक्ट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो ये था आपका रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन डिफरेंट मीडियम। ये क्वेश्चन आपको हर जगह यहाँ से मिला हुआ है। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिसिटी ऑफ एमीन्स पढ़ेंगे, वो भी एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो यहाँ पे हम आपको पूरा का पूरा एमीन्स चैप्टर को कवर करेंगे वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जो नीट में या एम्स में, ठीक है, मेडिकल टर्म या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा। ओके, थैंक यू।